Assalamu alaikum everyone, those who have just joined the class. So let me tell you that we are going to start with chapter number 6, automated and emerging technologies. In the previous class हमने discuss किया था, उसकी पूरा revision किया था. Today we are going to discuss about the question answers in the workbook related to chapter number 6. Am I clearly audible to you? कोई distortion तो नहीं है आवाज में? Right. So for that question, you'll be having around, I guess, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. You have 13 blanks over there. Okay. I can give you around 4 minutes. Okay. 4 minutes to write your answer in the chat box. And then after that, we are going to check the answer of this and you will tell me about your score. Right. So your time starts now. Do this. You'll be given some terminologies. Terminologies are being given over there. So you need to, these are the terminologies. You need to write down the correct terminology in the blank. Fine. So your time starts now. Do this and then we will discuss the answer. So right, we have the first one, dash are a form of AI developed to mimic human knowledge. So what would be the answer of it? कोई भी एक माइक पे जवाब दे सकता है. Expert systems. It's an expert system. Okay. तो ये the first we have is the expert system. जो दे चुका है कोशिश करे दूसरों को नेक्स्ट का मौका दे. एक्सपर्ट सिस्टम systems, ठीक है, are the form of AI developed to mimic human knowledge and reasoning. They uses knowledge and dash. कोई नया बच्चा जवाब दे. They uses knowledge and dash to solve problem. What will be the second? Yes. Inference. Inference engine, ठीक है. Inference engine आ जाएगा इसके अंदर. So we are going to use they are uses in knowledge and inference to solve problem where a degree of human expertise would be needed. Expert system interact with the user by the way of dash. किसके जरिए वो जो है यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस एग्जैक्टली वो जो आपसे कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है बाय मेकिंग यूज ऑफ यूजर इंटरफेस. जैसे आप एटीएम मशीन के अंदर इंटरफेस करते हो तो इसी तरह ये भी यूजर इंटरफेस के जरिए करता है थ्रू डैश. तो यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास? यूजर इंटरफेस किस किस तरह का हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं? Anything Dialog different from boxes. dialog box? Yes, it's a dialog box. डायलॉग बॉक्सेस की सूरत के अंदर वो डिस्कस कर सकता है. वंस अ कंक्लूजन इज फाउंड, और एक बार कंक्लूजन हो जाती है तो फिर सबसे आखिर में जो आप लोगों को कल में दो बार समझा रहा था वो क्या था? वंस अ कंक्लूजन इज Explanation एक्सप्लेनेशन सिस्टम. ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन सिस्टम कम्स इन एक्शन. तो जब भी फाइनल आपकी स्क्रीन पे कंक्लूजन कुछ लिखा हुआ शो नहीं हो रहा. हाँ अब आया. आगे, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन सिस्टम होता है. Then we get can be used to inform the user of the reasoning behind conclusion. The main processing element of an expert system is the dash. Main processing element क्या होता है? जो main Inference processing, engine. it's an inference engine. जो main processing element होता है, तो inference engine यहाँ आ जाएगा. Which behaves like a search engine. क्योंकि देखो ना यहाँ search engine बोल रहा है तो वो inference engine की बात कर रहा है. Examine the dash. किस चीज को examine करता है? knowledge Knowledge. base. नॉलेज बेस. यस, इन्फेरेंस इंजन एग्जामिन दी नॉलेज बेस. तो नॉलेज बेस में जो भी कुछ रखा हुआ होता है उसको ये एग्जामिन करता है. फॉर डाटा दैट मैचेस द क्यूरीज, जो भी क्यूरीज होती हैं उसको चेक कर लेता है. द डैश इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोनेंट. कौन सी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोनेंट होता है? एक्सप्लेनेशन सिस्टम. एक्सप्लेनेशन सिस्टम तो नहीं होता. Inference engine. इन्फ्लुएंस इंजन. इन्फ्रेंस इंजन ही होता है. ठीक है, इन्फ्रेंस इंजन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. इन्फ्रेंस इंजन. यस. ये आपने तो फिर सेकंड ब्लैंक में क्या लिखा है? दे यूज नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस टू सॉल्व प्रॉब्लम. इन्फ्लुएंस माने इसमें? सेकेंड लाइन में हाँ सेकंड ब्लैंक के अंदर जो इन्फ्लुएंस है इसका यहाँ पे क्या मतलब है? नॉलेज और इन्फ्रेंस का मतलब ही कि जो रूल्स लगाता है ना, ओके नॉलेज भी होती है और उसके बाद जो रूल्स लगा रहा होता ओके. है. ठीक है, कंपोनेंट विच मेक यूज ऑफ इन्फेरेंस इन्फेरेंस रूल्स. यही कह रहा है ना, इज द प्रॉब्लम विच कंपोनेंट विच मेक यूज ऑफ इन्फेरेंस रूल्स. तो जो इन्फेरेंस रूल्स होते हैं वो आ जाते हैं.
और वो स्टोर कहाँ पे होते हैं? rules based. rules based. वो रूल बेस में होते हैं, क्योंकि जो इन्फेरेंस रूल्स हैं तो वो रूल बेस के अंदर ही होंगे। दैट इज गोइंग टू स्टोर इन द रूल बेस। द नॉलेज बेस इज अ कलेक्शन ऑफ, कल हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था मैमल्स वाला, हाँ, ऑब्जेक्ट्स Object. वाला, Objects. डॉग और वेल्स आ रहा था तो वो ऑब्जेक्ट्स थे, और उनके एट्रीब्यूट्स थे, नॉट अ पैट, और उसके अलावा भी दो चार एट्रीब्यूट्स थे उसमें। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और आखिर में एट्रीब्यूट ये तो आ गया। तो अब जो नॉलेज बेस होती है हम उसको क्या कहते हैं? इज ऑफन रेफर टू एज Repository. Repository. रेपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ है तो फिर हम यहीं से सारी चीजें ले भी सकते हैं, रेपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स। तो जल्दी से स्कोर शेयर करो अपना, आप लोगों का स्कोर क्या रहा? दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा? ठीक है, मैं दी सिर्फ 3 या 13 लिखना चाह रहे थे? एक एक सबके गलत हुए हैं, तो वो एक कौन सा कॉमन है जो आप लोगों का गलत हो रहा है? नहीं सर 11 लिखा है, वो 3 लिख दिया। 3 तुमने पहले कभी लिखा था, 3:24। अच्छा जी, सेकंड वन आप लोगों का गलत आ रहा है, दैट इज द नॉलेज एंड इन्फेरेंस रूल। ठीक है, दैट्स फाइन, 1 मार्क प्लस माइनस हो जाता है, कोशिश करना वो भी ना हो। ठीक है, आ जाते हैं जनाब 2 पे। और बेटा समराइज ये है कि इन द लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था, और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद वर्कबुक से इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, वर्कबुक और पास पेपर सॉल्व करेंगे इसके, ताकि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। you have been given some descriptions and the terminologies, you have to match them। ठीक है, तो 1 मिनट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, एंड देन आई विल आस्क द आंसर। ठीक है, यस, तो स्टार्ट कर दें, टेक अ मिनट। और 1 मिनट लेने के बाद, ठीक है, 1 मिनट वो इसलिए दे रहा हूँ सोचने के लिए, फौरन फौरन कराऊंगा तो फिर जिसको नहीं भी आ रहा होगा तो वो भी इसमें फिर मिस कर जाएगा। तो 1 से 2 मिनट जरूर ले सकते हो। ठीक है, मुझे बताना चैट पे लिख के नहीं है आपने, जब मैं 1 बाय 1 पूछूंगा तो फिर आप मुझे बता दोगे। ठीक है, तो 1 मिनट का मैं पॉज लूंगा, 1 मिनट आप सोच लो, और फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। आई गॉट आंसर फ्रॉम तकी। ठीक है, चलें जी डिस्कस करें। अच्छा, एक सवाल ये आया कि भाई ये इन्फेरेंस क्या है? ये देखो, इन्फेरेंस बेसिकली कंक्लूजन होती है कि जब आप सर्टेन कोई भी लॉजिकल रीजनिंग कर रहे होते हो, तो उस लॉजिकल रीजनिंग के बाद जब आप कंक्लूजन पे आते हो तो वो इन्फेरेंस होता है। तो उसमें एक इन्फेरेंस इंजन ये चीज होती है कि जब आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आप ज़ाहिर है पहले नॉलेज बेस में जाते हो, नॉलेज बेस से वो डाटा निकलता है। तो नॉलेज बेस से वो डाटा निकल रहा होता है, सर्च इंजन उसको लेके आ रहा होता है, तो वो इन कोऑर्डिनेशन विद रूल बेस्ड भी होता है कि नॉलेज बेस से सारा डाटा तो नहीं उठाएगा, वो उठाएगा वो डाटा जो उससे मांगा गया है। तो वो सर्टेन डाटा निकालना, इन सर्च इंजन और रूल बेस ये मिलके निकाल रहे होते हैं, और जब वो निकाल लेते हैं तो फिर वो चीज जाती है आपकी इन्फेरेंस इंजन में, जो कंक्लूजन जो है वो करता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि इज अ कॉम्पोनेंट दैट अप्लाई लॉजिकल रूल्स टू द नॉलेज बेस। इस चीज को हम इन्फेरेंस इंजन कहते हैं। आज का क्लियर हो गया? तो अब हम आते हैं तो द मैचिंग ऑफ इट। तो पहला जवाब कौन दे रहा है कि डिवाइस that moves that can move between point A B without the need for manual input। तो वो चीज क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप पहुंच रहे हैं और कोई इनपुट नहीं दे रहे, तो वो चीज क्या हो सकती है? ऑटोनोमस। वो ऑटोनोमस होती है। यस, ऑटोनोमस है। तो अब उसके बाद सेकंड है अ फॉर्म ऑफ एआई that has been developed to mimic human knowledge and expertise। ये तो आसान तरीन है, एक्सपर्ट सिस्टम। it's an Expert expert system that mimic the human expertise। और रोबोट दैट रूम द इंटरनेट स्कैनिंग वेबसाइट एंड कैटेगराइज देम फॉर सर्च पर्पसेस। वेब हमने क्रॉलर। बात की थी Web वेब crawler. क्रॉलर्स होते हैं, है ना, दे आर द वेब क्रॉलर्स। तो वेब क्रॉलर्स क्या करते हैं कि आप जब सर्च करते हो तो वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो फिर वेब क्रॉलर्स जो है
वो बैकग्राउंड में मजीद सर्चेस करते हैं ताकि आपको बेटर सर्चेस प्रोवाइड कर सके। अच्छा, सिमुलेटेड इन्फेरेंस इन मशीन बिल्डिंग ऑफ मशीन्स कैपेबल ऑफ थिंग लाइक अ ह्यूमन। ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। एक्सपर्ट सिस्टम की एक और फॉर्म जो थी हमारे पास दूसरी, वो क्या थी? वो AI। एआई है ना। तो इट्स एन एआई। तो एआई वो होती है जो आपके पास इज अ टाइप ऑफ अ मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमन। तो वो एआई है। उसकी एग्जांपल आपके सामने चैट जीपीटी है कि जैसे आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे, मैं सोच के जवाब दूंगा, सेम एज इट इज चैट जीपीटी भी इसी तरह से सोचता है एंड देन जवाब दे रहा होता है। अच्छा, ये तो अभी भी आसानी सी बात, अभी हमने ब्लैंक में किया था रेपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स इन एक्सपर्ट सिस्टम इन द नॉलेज बेस। नॉलेज कलेक्शन। बेस। तो ये होती है हमारे पास नॉलेज बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉलेज बेस। मैं ये चाहूंगा पार्टिसिपेशन सब करें। एक दो बच्चे अगर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। पार्टिसिपेशन सबकी होनी चाहिए। एक दो बच्चे जवाब दे चुके हैं तो वो थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दें ताकि मुझे नई आवाजें सुनाई दें। ठीक है जी। तो ये है, क्योंकि मैं अगर देखूं तो मुझे कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे इस क्लास के अंदर बोल रहे होते हैं उसमें एक यूसुफ है, ठीक है, उसके बाद है सुहेल, ठीक है, इसका फीडबैक थोड़ा सा आ जाता है, फिर मेहदी का आ जाता है, मिन्हा का आ जाता है, तकी का आ जाता है, और उसके बाद जो आता है वो दहा का आ जाता है, ठीक है, और जोहा का आ जाता है, और विवेक का आ जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि फीडबैक सबके आए, ठीक है, तो माइक्रोफोन पे आने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज combination of a hardware and a software uh, designed and programmed to work automatically without the need of human intervention। तो फिर ये क्या होता है? ये तो डेफिनेशन है। Automated Automatic system. system. ये है ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं एंड देन दे वर्क विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। फिर अ सबसेट ऑफ एआई। एआई में दो ही चीजें थी हमारे पास, एक फिर मशीन लर्निंग। एक्सपर्ट था और एक मशीन Machine लर्निंग। learning. तो यहाँ पे सिंपल सिंपल मशीन लर्निंग आ जाएगी। एंड द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट ब्रिंग टुगेदर अ डिजाइन कंस्ट्रक्शन। ये तो रोबोटिक्स की सीधी सी डेफिनेशन नजर आ रही है जो हमने कल पढ़ा था। तो इट्स अ रोबोटिक्स। शेयर योर स्कोर एवरीवन। क्या स्कोर रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/8। ठीक है। तकी 8/8, इंसिया 6, ईशाल 7, मुनीजा 8/8, मिनहा फुल, मेहदी 8, विवेक 8, सुहेल 8, जोहा 2 रॉन्ग, हमजा 6, अरवा 6। ठीक है। छोटी मोटी गलतियां, चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस के अंदर ये गलतियां कर लोगे तो आगे फ्यूचर में नहीं करोगे। ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। अच्छा, अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस को मैं अगर देखूं, अगर कोई और मजीद क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट थ्रू द मार्किंग आपसे डिस्कस कर लूंगा ताकि जो है वो टाइम ना लगे। चलो एक काम करते हैं, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ भी आ जाएंगे। वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन दैट इज 6B। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बी है। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स यूज करने हैं। 1 मिनट में दे सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपसे इसको डिस्कस करूंगा। यू हैव अ मिनट कि आप इसको एक बार देख लो और फिर मैं आपसे इसका फीडबैक लेता हूँ। ये मुझसे भी फिलहाल शेयर करने की चैट पर जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा देन यू आर गोइंग टू आंसर, राइट। टेक अ मिनट और अपने पास नोट डाउन कर सकते हो ट्रू फॉल्स करके, और फिर मैं जब आपसे पूछूं देन यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो जो पहली चीज हमारे पास आ रही है दैट इज ऑटोमेटेड सिस्टम्स लीड टू लेस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और लेस कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स। ये क्या होगा? सीधी सीधी बात है, फॉल्स होगी। ऑटोमेटेड सिस्टम आने पे फॉल्स हो जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर मोर एक्सपेंसिव टू सेटअप। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑटोमेटिक सिस्टम कुड बी क्विकली ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड टू इट। ऐसा होता है कि अगर फॉल्स सर है इसका ना, मतलब घबरा था। हाँ, मतलब ये कि अगर आप बहुत ज्यादा इसको अगर आप डाटा देते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ डाटा, तो उससे ये जैसे अब ह्यूमन है ना, ह्यूमन के ऊपर अगर एक साथ बहुत सारा काम आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट ये अगर आप इसके ऊपर इसका लोड बढ़ा रहे हो तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर इनहेरिटली लेस सेफ
देन मैनुअल, Sir, false. false, false ही है, False. less तो नहीं होते. Automatic systems generally require enhanced maintenance, yes, True. true, allow process to run at optimum condition at all time. True. True है, True. optimum condition पे चल रहे होते हैं. Software failure due to unforeseen condition are unlikely False. false, to impact, क्योंकि ये unlikely बोल रहा है, likely तो नहीं बोल रहा ना, तो ये false ही होगा यहाँ पे. और last है automatic system will react more quickly to unusual process. ठीक है ना, तो ह्यूमन के मुकाबले में वो तेज काम करता है, तो ये हो जाएगा रिएक्टिंग मोर क्विकली. कल हम बात कर रहे थे इसी की, मैं आपको बता रहा था कि डायग्राम्स वगैरह अगर आती हैं तो लेबल करने के लिए आ सकती है. तो अब जैसे ये 1 है, ह्यूमन के आगे सबसे पहले कौन सी चीज होती User है? interface. ये यूजर इंटरफेस होता है. यहाँ पे जो आएगा ये आप भी रह जाएगा. ये एक्सप्लेनेशन सिस्टम था, और ये जो होता है जैसे रूल बेस है ना, तो रूल बेस के नीचे कौन होता है? knowledge base, base. नॉलेज बेस थी. नॉलेज बेस. उसके बीच में जब एक्सप्लेनेशन सिस्टम है तो उसके नीचे कौन सा जो Search सर्च, engine. inference, Inference engine. मतलब सर्च इंजन नहीं लिखेंगे, बेसिक सर्च इंजन की तरह काम करता है, वो होता है हमारा इन्फेरेंस इंजन. ये हो जाएगा इसमें. ठीक है. अच्छा जी, तो अब कह रहा है सेक्शन ऑफ नॉलेज बेस इज शोन बिलो बस ट्रेन टैक्सी. व्हाट इज द करेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम नेम फॉर दिस आइटम्स इन कॉलम 1? कॉलम 1 दिया हुआ है, ठीक है. व्हाट इज द करेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम नेम, इसको क्या कहते हैं? Object. उसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरी एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे जो चीज, हाँ, तो यहाँ पे जो चीज आएगी वो आएगा ऑब्जेक्ट्स. दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. एक एक्सपर्ट सिस्टम में दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स. तो वो कह रहा है यहाँ पे जो मिसिंग थी ना, वो ये पूछ रहा है कि ये क्या चीज है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स. अच्छा जी, द फॉलोइंग set of question was asked by the expert system. The user answer to each question shown using the knowledge base section shown above. What would be the expected output? What do you think? देखते कौन पहले जवाब देता है. पहले उसके लिए आपको ऊपर से भी टेबल देखना पड़ेगा. तो डज इट हैव अ हाइब्रिड इंजन, इसका हाइब्रिड इंजन होता है या नहीं होता, एक चीज. और डज इट यूज अ रोड? यस, रोड यूज करते हैं. और उसके अलावा इट्स अ 4 व्हील, यस 4 व्हील भी है. और ठीक है, Sir, taxi cab. Taxi cab. चलो पहले मैं खुद करवा देता हूँ. डज इट हैव अ हाइब्रिड इंजन, तो इसका हाइब्रिड इंजन होता है नहीं होता, तो इसमें पहले हम एट्रीब्यूट 1 में क्या लेंगे इसमें. जैसे उसने कहा कि हाइब्रिड इंजन नो है, तो हाइब्रिड इंजन इन दोनों का नो है, एक तो ये बात आ गई. डज इट यूज अ रोड, रोड यूज करते हैं, ठीक है. तो डज इट यूज अ रोड, तो कह रहा है रोड, तो ये रहा आपका. और डज इट हैव 4 व्हील्स, तो ये आ गया इसका 4 व्हील्स, ठीक है, ये आ गया. और उसके बाद कैन इट टेक मोर देन 5 पैसेंजर, तो ये अप टू 80 पैसेंजर्स की बात कर रहा है. तो इसमें अब क्या आएगा हमारे पास? अच्छा, हम नीचे वाली चीज में भूल गया था, दैट इज 4 व्हील्स, ठीक है. और ये है कैन इट टेक मोर देन 5 पैसेंजर, तो 5 पैसेंजर तो नहीं लेता, ये 4 पैसेंजर तक लेता, ठीक है. तो जैसे अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, उसने कहा ना डज इट हैव अ हाइब्रिड इंजन, तो उसने कहा नो. नो का मतलब डीजल इंजन, ठीक है. डज इट यूजेस अ रोड? यस इट यूजेस अ रोड. डज इट हैव अ 4 व्हील्स? यस इट हैज अ 4 व्हील्स. कैन इट टेक मोर देन 5 पैसेंजर? नो. नो का मतलब है तो ये 4 ले सकता है. तो यहाँ पे जो चीज आएगी वो आएगी टैक्सी कैब. बच्चों ये क्लियर है सबको? ये हो Yes, गया, sir. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन है, ये एक सवाल गुजरा तो है डिस्क्राइब की, जब बात करते हैं तो इसमें 4 से 5 मार्क होते हैं. तो डिस्क्रिप्शन वाले सवाल को मैं अभी डिस्कस करता हूँ. पहले पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. तो अब हम 9 की तरफ आ जाते हैं जरा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा
ऐसा है जो एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? एक एक्सेलेरोमीटर। जी सर। एक्सीलरोमीटर इज नॉट अ कंपोनेंट, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम में इन्फेरेंस इंजन होता है, रूल बेस होती है, नॉलेज बेस होती है, यूजर इंटरफेरेंस इंटरफेस होता है। द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग अ मशीन टू मेक डिसीजंस, एआई की तरफ कोई बात कर रहा है। सो डाटा एक्विजिशन, अब तो कहता है थ्रू द डाटा मशीन लर्निंग। एक्विजिशन से जो चीज होती है दैट इज व्हाट कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो वो कहता है ना कि जो डाटा एक्विजिशन से करता है वो मशीन लर्निंग है, जिसमें ह्यूमन नॉलेज को मिमिक करता है तो वो एआई हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तीसरा, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये तो भी डेफिनेशन है सिंपल, डिजाइन अ प्रोग्राम टू वर्क ऑटोमेटिकली, तो जो ऑटोमेटिकली करवाता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट ब्रिंग टुगेदर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, रोबोटिक्स। are Robotics. simply called robotics. Which of the following is not an advantage to the management of using robot in an industry? Give the correct answer. They तो can इसमें cause क्या है? de-skilling of workforce. It's not an advantage to the management. ई सर। रीस्किलिंग सर, रीस्किलिंग। दोबारा से बोलो। पार्ट डी। पार्ट डी है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज। ये मतलब एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज। है, हाँ डिसएडवांटेज हो गया ना। तो जाहिर है लाइकली टू मेक एरर्स नहीं है, वर्क इज मोर कंसिस्टेंट ये भी नहीं है। सिंपल सिंपल हमारे पास डी आ जाएगा, दे कैन कॉज डी स्किलिंग। तो डी स्किलिंग का नुकसान आप ही को होना है, ह्यूमन को, मैनेजमेंट को उसका कोई नुकसान नहीं होना है। सर डी का मतलब क्या है? डी का मतलब यही हुआ ना कि दे कैन कॉज डी स्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दी थी, कोई और बताना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा अगर कल किसी को मेरी एग्जाम्पल याद हो? एक हेलीकॉप्टर वाली एग्जाम्पल दी थी मैंने। यस, ड्रोन से रिप्लेस कर दिया। हेलीकॉप्टर के अंदर पहले जब भी किसी को शूट करना होता था कुछ, तो कैमरामैन हेलीकॉप्टर के थ्रू कैमरे से शूट करता था। अब ड्रोन्स के अंदर कैमरा इंस्टॉल्ड होता है और सिंपली उससे कर रहे होते हैं। और तो जो ह्यूमंस को मनी पे करते थे, अब वो ड्रोन्स खरीद के हो सकते हैं। वेरी गुड मेहदी, कल हमने बात की थी कि पहले एक स्किल सीखनी होती थी कि भाई कैमरा भी चलाना आना चाहिए, प्लस हेलीकॉप्टर से कैसे शूट्स लेने हैं वो भी सीखना है, तो दैट वाज द स्किल। बट अब जब ड्रोन आ गए तो हेलीकॉप्टर भी गया, उसको चलाने वाले की भी जॉब गई, और जो उसमें बैठ के फोटोग्राफी करता था उसकी भी जॉब गई। ठीक है, तो ऑटोमेशन से ये चीज हो जाती। तो ड्रोन ने जो है 3 लोगों की जॉब खा गया वो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो यहाँ खत्म होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट अमूमन वो हैं जो याद करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी मेमोराइजेशन अच्छी होनी चाहिए। बच्चों में थोड़ी सी मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं कि वो जो है वो बस पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि ठीक है जी हो गया, और बट एग्जाम के टाइम पे जाके ना फिर वो भूल जाते हैं। तो वो भूलना तो एक लाजिम है, वी आर द ह्यूमंस, और हमसे गलतियां होती हैं और हम भूलते भी हैं। तो भूलने से बचना है ना, तो बेटर होगा कि आप उसको याद करके लिखो। ठीक है, तो आप जितना उसको याद करके लिखोगे वो उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो इसकी मार्किंग मैंने आपसे शेयर की हुई थी। ठीक है, तो मार्किंग भी मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा आपसे, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा अभी पूरा पूरा लिखना शुरू हो जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम। हाँ, मैं पॉइंट जरूर लिखता हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग द पॉइंट, बट आई एम शेयरिंग मार्किंग स्कीम फॉर द रेफरेंस, ताकि फिर मुझे लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे। अब जैसे वो ये कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑटोमेटेड सिस्टम, तो आप यहाँ कौन सा पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हो? सर मैं बता दूं, बताओ बिल्कुल। combination of hardware and software which is ठीक है, designed and programmed to work automatically without any human intervention. वेरी नाइस। ठीक है, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन एंड प्रोग्राम टू वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिख दिया, और मैं यहाँ पे बुलेट लिख देता हूँ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, समझ लो इस बात को, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, तो मार्किंग की अगर मैं शेयर करूंगा तो उसमें भी आपको यही चीज मिलेगी कि दे आर डिजाइन टू परफॉर्म द टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। फिर आपने पूरा पूरा लिखना है विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आज की क्लास के बाद आप जब बैठोगे खुद से, तो आपने इसकी मार्किंग की खोलनी है, और मार्किंग की खोलने के बाद ये ठीक से लिख लेना है। आपका देखो दैनिक चैप्टर 6 पूरा हो जाएगा, तैयारी आपकी। ठीक है, तो कहते हैं वन पार्ट ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ सेंसर, व्हाट
द सेंसर इज, मेहदी के अलावा कोई और जवाब दे। इसकी डेफिनेशन मैंने कल ही लिखवा दी। सेंसर क्या होता है? सेंसर एक इनपुट डिवाइस होती है और ये क्या करती है, जल्दी बताओ। सर टेक्स्ट रीडिंग फ्रॉम द सराउंडिंग और जो डेटा वेरी होगा गुड, वो एनालॉग में। ठीक है ना। तो टेक्स रीडिंग फ्रॉम सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग से डाटा लेता है और फिर किसको सेंड करता है? माइक्रो प्रोसेसर। सेंड टू माइक्रो प्रोसेसर। इनफ है इसके लिए। एक्सप्लेन की बात कर रहा है ना, तो एक्सप्लेन के अंदर फिर आपके पास 3 मार्क 3 पॉइंट्स तकरीबन होने चाहिए। नेम 3 एरियाज वेयर ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर यूज्ड। तकरीबन हमने कल 7 या 8 पढ़े थे ऑटोमेटेड सर ये सिस्टम। एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम है। यस, एप्लीकेशन और एरियाज वही होते हैं। कहाँ इंडस्ट्री, कहाँ? गेमिंग, लाइटिंग। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर। Agriculture. एक मैं इंडस्ट्री लाइटिंग। लिख देता हूँ, एक मैं एग्रीकल्चर लिख देता हूँ, एग्रीकल्चर। एक मैंने लाइटिंग की आवाज सुनी। एग्रीकल्चर रोबोटिक्स के अंदर होता है। क्या है? एग्रीकल्चर जो पॉइंट है वो रोबोटिक्स का पॉइंट है। ऑटोमेशन नहीं हो सकती उसके अंदर, एग्रीकल्चर में क्यों नहीं हो सकती ऑटोमेशन? ऑटोमेटिकली वो तुम एक वो खड़ा कर दो, वो होते हैं ना डराने के लिए अच्छा, स्टैचू स्केप टाइप का, तो उसको ऑटोमेटिकली करके लगा सकते हो, हिलता रहेगा उसका हाथ, घूमता रहेगा, तो परिंदे नहीं आएंगे। वेदर फोरकास्टिंग, कोई नया नाम दे दो मुझे। सर मेडिसिन। हाँ, साइंसेस के अंदर था ना साइंसेस, तो उसको इस तरह से कर सकते हो कि साइंस हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ठीक है। और लाइटिंग की बात कर ली मैंने। गेमिंग के अंदर भी ऑटोमेशन होती है, ठीक है। तो काफी सारे हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग ये सब चीजें हो गई थी। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑटोमेशन तो हो रही है ना, जो ऑटोनोमस कार्स चल रही हैं। हाँ जी। सर ये 3 पॉइंट्स के लिए इतनी ज्यादा जगह क्यों दी हुई है? क्यों उसमें डिफाइन भी करना है इसको? वर्बुक है ना, वर्बुक में नहीं, यहाँ डिफाइन नहीं करना, जहाँ नेम की बात होती है नाम देना पड़ता है। ये बस दे दी उन्होंने, ऐसी ही जगह दे दी, हालांकि इसमें सिवाय नाम के और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है। जी एडवांटेजेस सर। तो हमने कल बहुत सारे पढ़े थे, डीप एंड डिटेल, तो मैं बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देता हूँ कि ये होते हैं मच फास्टर। दोबारा बता रहा हूँ, ये मत लिख के आना मच फास्टर, पूरा लिखना होगा कि दे आर मच फास्टर देन अ ह्यूमन ऑपरेटर टू टेक एनी नेसेसरी एक्शन, ठीक है। दे रन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशंस के ऊपर ये काम करते हैं। एंड और सर ऐसे ह्यूमंस एक्सपेंसिव आर नॉट एक्सपोज्ड टू जनरल डेंजर। एडवांटेज है ना, तो एक सेकेंड, एडवांटेज है ना पहले तो एडवांटेज के अंदर ये हो सकता है कि वो होता ना हमारा सेफर इन्वायरमेंट था, मच फास्टर और मच सेफर, कि अगर यस वो ऐसे इन्वायरमेंट्स के अंदर यस सर। जहाँ पे हैजर्डस गैस और इस तरह की चीजें हो तो वहाँ काम नहीं करते। सर, हाँ जी। ये जो आपने उसका लिखा है पहला पॉइंट, तो उसके अंदर ये भी आ जाता है हाई प्रोडक्टिविटी इन मंथ्स, मोर कंसिस्टेंट। हाँ, लेकिन मच फास्टर एक पॉइंट है और हाई प्रोडक्टिविटी दूसरा बन जाएगा, और कंसिस्टेंट भी। तो ये तुम्हें फायदा, मोर कंसिस्टेंट तीसरा बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। और दे आर मोर प्रोन टू मोर एरर्स, क्या मतलब हुआ? डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, डिसएडवांटेज इसके क्या कहते हैं? सबसे आसान पहला वाला, एक्सपेंसिव टू सेटअप इनिशियली। साइबर सर थ्रेट। थ्रेट ऑफ बीइंग हैक्ड। सेटअप इनिशियली, तो ये इसका मसला आ जाता है। और कोई भी सिस्टम जो सब्जेक्ट टू इंटरनेट है उसमें हैकिंग के इश्यूज आ सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ सब्जेक्ट टू साइबर अटैक्स, सब्जेक्ट टू साइबर सर हम ये लिख अटैक्स। सकते हैं इनहांस मेंटेनेंस व्हिच कैन बी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, मैं वही लिखने जा रहा था कि नीड इनहांस मेंटेनेंस, नीड इनहांस मेंटेनेंस। अब आप पूरा लिखोगे मेंटेनेंस फॉर द इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेंटेनेंस, ये हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल आया था और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये सवाल सर ना, आपकी स्क्रीन नहीं चल रही है। स्क्रीन नहीं चल रही, नीड इनहांस मेंटेनेंस। अच्छा, नहीं सर, अभी चल रही है, अभी चल रही है। चल गई, सबके पास रुक गई भी थी। यस सर। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है सही, डिस्टॉर्शन तो नहीं, क्लियर है? नहीं नहीं, आवाज नहीं पहुंच आवाज रही। सही है यस सर। सर। चलो ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था और मतलब इसके अंदर है, और इस तरह का मुझे लगता है
कि जो है ना ये सवाल आ सकता है, ठीक है। इसमें एक नहीं कई सारी चीजें, इसमें मतलब थोड़ी सी इंटेलिजेंस की भी जरूरत है। इन शॉर्ट सीधी सीधी कहानी ये बता रहे कि ये जो आपको कैमरा नजर आ रहा है और जो बैरियर लगा हुआ है, आप अगर किसी कॉलोनी के अंदर रहते हो तो ये बैरियर उड़ जाएगा अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। आप जब जाहिर है वहां रह रहे हो तो आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। तो उस हवाले से ये पूरी कहानी की बात पूछता है कि ये बताओ कि ये वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ दैट उसने सवाल पूछा है कि नेम अ सॉफ्टवेयर दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट द कैमरा इमेज। जाहिर है कैमरा इमेज लेगा आपकी नंबर प्लेट की, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट कैन बी यूज। तो पिक्चर को कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कौन सी चीज भेजती है? पीसी। अस्का का जवाब आया है और अस्का का जवाब OCR सही से है। एडीसी। वो सी इसको आर कहते हैं ओसीआर। ये शायद मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया हो या इनपुट डिवाइसेस में नहीं, बल्कि बताया तो सर होगा, किया था है ये ना। तो input devices में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये इमेज में से आने वाले टेक्स्ट को कंप्यूटराइज टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सर एडीसी नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि उसने बोला है नेम अ सॉफ्टवेयर, एडीसी हार्डवेयर है। ओके। सर ओसीआर क्या सिलेबस में है? ये ना एक वर्ड एक लाइन पेपर में लिखी हुई है, बस बुक में कहीं ना कहीं मेंशन की है, ठीक है। तो वैसे सिलेबस में कहीं नहीं है बट इसका जिक्र हुआ है, तो फिर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ओसीआर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में करता है। ये है, जब स्कैनर पढ़ा था ना हमने तो स्कैनर के अंदर था ये, ठीक है। बस इतना ही है, कोई डीप डिटेल चीज नहीं है, बट इतना ही है कि ये होता है। अब वो आपसे 6 मार्क का तकरीबन ये क्वेश्चन आराम से पूछेगा कि पूरी कहानी में सेंसर कैमरा एक्चुएटर ये सब कैसे इस्तेमाल होंगे ताकि वो कंट्रोल कर सके एंट्री एंड एग्जिट, है ना। यानी कैमरा लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। अब आपके आंसर में होना चाहिए कि कैसे कार नंबर प्लेट्स मीट द क्राइटेरिया फॉर एंट्री, एनी अदर सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्सपेक्ट। तो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है। तो क्या कहते हो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, कोई बताना चाहेगा? सर मैं बोलूं? बोलो। सर सबसे पहले हम इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल करेंगे, और वो जब उसकी बीम ऑफ लाइट वो जैसे गाड़ी गुजरेगी तो बीम ऑफ लाइट वो कट होएगी और जिससे से सिग्नल जनरेट होंगे जो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर पहुंचने से पहले वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होंगे जो बाइनरी में होएगा, और वो माइक्रो प्रोसेसर फिर अंडरस्टैंड कर पाएगा। बहुत अच्छा, फिर रुक जाओ यहीं पे, बहुत सारी माइक्रो चीजें तुमने प्रोसेसर अच्छी वो बता दी। जो स्टोर्ड बस वैल्यू यहीं से रुक जाओ, कंपेयर यहीं रुक जाओ, करेगा। और यहीं रुक जाओ ताकि मैं किसी और से भी फीडबैक लूँ। तुम्हारा जी फीडबैक सर। बहुत अच्छा रहा। आई वुड लाइक एनी अदर टू ऐड समथिंग इन इट। सर इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस्तेमाल हो सकता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्योंकि क्या कैमरा करेगा? कैमरा है ना, कैमरा की जो सामने का कोई वो आ गया तो फिर उसको चेक करेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अमूमन डिस्टेंस मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो तुम किस तरह से कह रहे हो, यहाँ क्या काम करेगा ये? मतलब जब कोई गाड़ी नहीं होगी तो वो कैमरा बंद हो कर जाएगा। लेगा कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, यस। फिजिकल, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये भी हो सकता है। और कोई और बच्चा ऐड करना चाहे? सेंसर से उसमें लग जाएंगे डिफरेंट सेंसर्स, प्रेशर सेंसर भी लग सकता है वहां पे। और जो कार का जब वेट आएगा तो प्रेशर सेंसर भी लगता है ऐसी जगहों के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो मैं अगर एक पॉइंट कहता हूँ कि मैं बोलूंगा कि भाई प्रेशर सेंसर इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करेगा प्रेशर सेंसर रिकॉग्नाइज प्रेजेंस ऑफ द व्हीकल, कि भाई गाड़ी पहुंच गई है, प्रेजेंस ऑफ व्हीकल स्क्रीन पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। फिर वो जो भी डाटा है वो सेंड बैक टू द कंप्यूटर होगा, डाटा जो है वो कंप्यूटर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब कैमरा ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो जो नंबर प्लेट की फोटोग्राफ है वो टेकन बाय द कैमरा होगी, नंबर प्लेट फोटोग्राफ टेकन बाय द कैमरा, फिर वो भेजी जाएगी टेकन बाय कैमरा। फिर उसके बाद क्या होगा, सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज ओसीआर। ओसीआर सॉफ्टवेयर, बच्चों आवाज आ रही है, मुझे कोई फीडबैक नहीं सुनाई दे रहा। ओसीआर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स जी। कन्वर्ट्स नंबर प्लेट पे जो नंबर होगा उसको, ओसीआर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द नंबर फ्रॉम नंबर प्लेट
इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको मैच कराएगा डेटाबेस के अंदर जो भी नंबर है, मैच इट विथ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये 6 मार्क का सवाल होगा, ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा। तो अगर वो डेटाबेस में वो चीज मौजूद हुई, यानी वो डेटाबेस में नंबर मौजूद हुआ, मैचेस इट विद डेटाबेस इफ फाउंड, अगर वो मिल गया, ठीक है, तो फिर वो सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर को, जो बैरियर को रेस कर देगा। यही होगा ना कि इफ फाउंड देन signal is sent to motor or actuator to raise the barrier। मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स होने चाहिए। पिक्चर लेना चाहो तो ले सकते हो इसकी, वरना तो सीधा सीधा मार्किंग से भी देख लेना। बच्चों क्लियर है? जल्दी से माइक पे हाँ या ना बता दो, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। Yes. ठीक है, सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल था। ये या इसके बाद वाला था आई गेस, हाँ इसके बाद होगा। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑटोमेटिक सिस्टम टू कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट टू द कार पार्क। ये तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका क्या फायदा होगा भाई? सर ये 24/7 Reliability. 24/7 काम करेगा, ठीक है, और इम्प्रूव सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज व्हीकल्स को भेजेगा, और नो नीड फॉर द मैनुअल चेकअप। तो फिर मैनुअली किसी बंदे का वहां होना जरूरी नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नो नीड फॉर मैनुअल चेक। ये हो जाएगा। रिलायबिलिटी वाली बात आई थी ना, देखो ये वाले पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे रिलायबिलिटी लिख के स्पेसिफाई करो तो ठीक है, अब रिलायबिलिटी किस सेंस में, ये भी तो होना चाहिए ना। तो फिर ये चीज होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं सिर्फ इम्प्रूव सिक्योरिटी लिख रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा भाई कि इम्प्रूव सिक्योरिटी इस तरह से होगी कि ओनली रिकॉग्नाइज व्हीकल्स आर अलाउड। तो मैं पूरी बात करूंगा तो फिर वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा मुझे। आपने तो पूरे मार्क्स हासिल करने हैं, आपने तो कोशिश करनी है आप डिस्टिंक्शन की तरफ जाओ, ताकि कम से कम गिरो तो ए स्टार के ऊपर आओ। तो फिर आपने पूरी पूरी अच्छी पूरा पूरा कंप्लीट आपने जो है ना उसके आंसर्स को लिखना। आगे आते हैं। वन डिसएडवांटेज इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इलीगल कॉपिंग ऑफ नंबर प्लेट। आपकी गाड़ी ऑफिस में खड़ी हुई थी और मैंने उसको चुरा के, और उसमें बल्कि मैंने आपकी नंबर प्लेट को चुराया और मैंने उसको अपनी गाड़ी पे लगा दिया और मैं आपकी कॉलोनी में पहुंच गया। तो क्योंकि वो सिस्टम तो सिर्फ नंबर प्लेट को मैच करेगा, तो नंबर प्लेट तो आप ही की लगी हुई है जो मैं चुरा के लेके आया हूँ। तो फिर ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा कि अगर कहीं कॉपी हो गई नंबर प्लेट, टू फूल द सिस्टम एंड अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस, आप इससे कैसे बचोगे? ये एक बड़ा, एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। व्हीकल पूरी स्कैन कर ले, क्या करें? व्हीकल पूरी स्कैन कर ले, व्हीकल को स्कैन कर लें, थोड़ा बी स्पेसिफिक हो जाओ, होगी सही है, थोड़ा और। मैनुअल चेकिंग। मैनुअल तो नहीं करेंगे ना, अब मैनुअल तो फिर करेंगे तो ऑटोमेटिक का फायदा क्या हुआ? क्या हो सर वी सकता कैन है? चेक कि आप कैसी लोगों ने ये चीज गाड़ी देखी है कि कैसी कुछ है। गाड़ियों को पहले आप बोलो था, तकी था कौन है? सर ताकि जी तकी कहिए। सर वी कैन एज Mehdi said we can scan the cars। हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसी मॉडल की कार है, कैसी इसकी uh, ये इसकी कह विड्थ सकते हो कि उसका कैसी है, इंजन ये नंबर कैसी चेक है। हो सकता है, इंजन जी, नंबर और चेक हो ये भी सकता है, चेक कर बॉडी सकते नंबर हैं कि चेक हो अगर सकता है, कि चेजिस चेक अगर हो सकता है। ओरिजिनल है। वी कैन ऑल्सो चेक कि अगर ओरिजिनल कार पहले सी अभी है पार्किंग में, तो फिर उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, या तो बस उसने ये पूछा है कि अगर नंबर हाँ प्लेट कॉपी हो जाती है तो फिर आप करोगे। जी यूसुफ कुछ बताना चाह रहे हो? हाँ सर, एक ये हो सकता है कि चेक मैन्युफैक्चरर लोगो, या चेक एग्जैक्टली। कार कलर, आप लोगों या ने चेक देखा होगा अगर बायोमेट्रिक। आप कोई कॉलोनी में कहीं रहते होगे तो आपको एक स्टिकर मिलता है कार में लगाने के लिए। जैसे कुछ लोग जिन जिन कॉलोनीज में रहते हैं, क्योंकि उनको ऑथराइज करने के लिए कॉलोनी की तरफ से और उस सोसाइटी की तरफ से एक बैज और स्टिकर मिलता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तो कह रहा है इलीगल कॉपी ऑफ नंबर प्लेट हो रही है, तो आप नंबर प्लेट के साथ साथ वो जो बैच आपको मिलता है, व्हीकल मैन्युफैक्चरर बैच, जिसको आप चेजिस कह दो लेट्स सपोज,
तो ये भी कह सकते हो कि जो अगर आपको डायरेक्ट कंपनी से मिल रहा है वो भी, या फिर आपको सोसाइटी की तरफ से दिया गया स्टिकर, वो भी कर सकता है वो। तो वैसे अगर आप यहाँ पे लिखो तो चेसिस नंबर कह दो या व्हीकल मैन्युफैक्चरर बैच कह दो, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर बैच, जो आसान लफ्जों में चेसिस होता है, इंजन नंबर चेसिस नंबर जो लिखा हुआ होता है। और उसके अलावा एक चीज आती है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन। आपने देखा होगा अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड से जब कोई क्लॉथ वगैरह खरीदते हो तो वो एक ब्लैक कलर का आपके पास एक वो लगी हुई होती है डिवाइस, वो उसको उससे निकालते हैं। अगर कोई उसी के साथ लेना लेके उसको चला जाता है तो फिर क्या होगा? अगर आपका टैग नहीं निकला तो फिर क्या होता है? आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो दरवाजे के साथ वो टीं टीं की आवाज आती है। हाँ, तो फिर आप बाहर जाओगे क्योंकि उसके ऊपर RFID लगा हुआ होता है। तो अगर कोई इलीगल है या भूले से या गलती से कोई अगर वो लेकर निकलना शुरू हो जाता है तो फिर वो आपका बीप करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो कि एडिशनल सिक्योरिटी लगा सकते हो। एडिशनल सिक्योरिटी किस तरह लगा सकते हो? दैट इज RFID, बाय यूजिंग RFID। तो बाय यूजिंग RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन। इसके जरिए आप ये वाला काम कर सकते हो। A car is equipped with a self-parking technology. Explain the role of the following devices. तो इसमें क्या है? कार में जब सेल्फ पार्किंग टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। कैमरा क्या करेगा? ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कैमरा क्या करेगा इसके अंदर? कैमरा जो है वो स्कैन साइज ऑफ करेगा। द स्कैन करेगा साइज ऑफ द पार्किंग स्पेस। ये वाला काम कर सकता है कि भाई कितनी स्पेस है, साइज ऑफ पार्किंग स्पेस। नॉर्मली आप लोग यूज कर ही रहे हो तो अपनी कार्स के अंदर बैक कैमरा अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है। और आपको फीडबैक इमेज देगा पार्किंग प्रोसीजर के लिए। सेंसर क्या करेगा? And सेंसर sir, also, हाँ, sir, I was saying for cameras that it will also see the parking lines to park in the boundary. दोबारा से बोलो क्या करेगा? For cameras, I was saying that it will also see the parking boundary to park. फॉर पार्किंग, वो रोड पर जो हाँ तो ये पार्क लाइन आपको, से हाँ तो बोलते हैं, कह रहा है ना this is the फीडबैक parking इमेज boundary. प्रोवाइड करेगा। उसको check तो उसको आप इस तरह से कर सकते हो कि प्रोवाइड द फीडबैक इमेज, कि आपको एक इमेज वो प्रोवाइड करेगा टू ड्राइवर। ठीक है ना, ड्राइवर को फीडबैक इमेज प्रोवाइड करेगा टू चेक पार्किंग प्रोसीजर, ताकि आपको स्पेस मिल जाए पार्किंग की। टू चेक पार्किंग प्रोसीजर। और फिर बाकी सेंसर क्या करेगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स या नियर बाय व्हीकल्स को डिटेक्ट करेगा। कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अदर व्हीकल्स। टकराएगा तो नहीं ना गाड़ियों से, जाके बचाएगा। और फिर उसके अलावा डिटेक्ट कर सकता है जो क्या कर सकता, अदर व्हीकल्स की प्रेजेंस को देख लेगा। फिर उसके अलावा आसपास लोग तो नहीं आ रहे, डिटेक्ट करेगा। और बाकी ट्रीज के जो भी चीजें, कैन पीपल पीपल और लैम्प पोस्ट, इस तरह की चीजें जो लगी हुई होती हैं, तो उन सारी चीजों को देखेगा। इसके बाद क्या है? डिस्क्राइब हाउ मैरिट सिस्टम कैन प्रिवेंट। अच्छा, एक चीज रह गई, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या काम करता है? ये तो मोटर होती है ना जो एक्शन सर परफॉर्म हाँ, कंट्रोलिंग चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम गाड़ी में क्या क्या- सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेक। तो एक्चुएटर की मदद से ब्रेक लगेगा। और दूसरा बताओ कोई? operates brakes, ब्रेक escalator तो हो गया, and steering. और उसके अलावा बताओ? एक्सेलरोमीटर के अंदर लगा हुआ होता है। एक्सीलरोमीटर में लगा हुआ होता है, थ्रोटल और एक्सीलेटर। तो बस सर एक्सीलेटर ट्रंक में भी तो लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ट्रंक में। लिख के भेजो क्या कहना चाह रही हो, आवाज थोड़ी इंजन का सी बोल रही नहीं है। आ रही, लिख के भेज दो। तो ये चीज आ जाएगी, बाकी सारी चीजें आ गई। कैन द आंसर बी रिटन इन पॉइंट्स? ट्रंक्स में, हाँ ट्रंक्स में लगा हो सकता है, बिल्कुल सही है। और कैन द आंसर बी रिटन इन पॉइंट्स, तो इसका ये है, हाँ पॉइंट्स में लिखो, मसला नहीं है। पॉइंट्स में लिखना ज्यादा अच्छा हो जाता है कि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को एग्जैक्टली चीजों के बारे में पता है और वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ये अच्छा सिनारियो है। अच्छा, ये वाला जो है ना एम्बेडेड सिस्टम वाला, ये पूरी कहानी सेंसर वाली है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो
एडीसी माइक्रो प्रोसेसर वाली पूरी कहानी है, तो उसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। ये वाला एक सवाल आया हुआ है, एक काम जरूर करना, ये जो बी वाला पार्ट है ना, इसको होमवर्क जरूर करना। इसमें फिर जिसको कोई मसला आए ना तो मुझसे डिस्कस करना, ठीक है? तो बी वाला होमवर्क नोट कर लो। अब हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये वाला, नेम एंड सुटेबल सेंसर्स मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू वैक्सीन। इसमें ना तुम्हें सारे सेंसर्स लगाने, और सेंसर्स लगाने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम में डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ योर नेम सेंसर। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू वैक्सीन which require the mixing of 4 liquids in the ratio. The 4 liquid must be totally mixed and the temperature must be maintained when fully mixed. The solution turns yellow even yellow color. इसमें कौन सा सेंसर लगेगा बताओ? टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर तो नहीं लगना ना, या टेम्परेचर तो नहीं लगना। हाँ और बोलो। ये लेवल सेंसर सर। इसमें लेवल सेंसर होगा। उसकी बात क्या है कि व्हेन फुली मिक्स द सॉल्यूशन टर्न्स एन इवन येलो कलर। तो उसमें कह रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ न्यू वैक्सीन विच रिक्वायर द मिक्सिंग ऑफ 4 लिक्विड्स एज अ सिंगल बैच द 4 लिक्विड। तो ये इस पूरी कहानी के अंदर तो ये कह रहा है कि एक बैच आपकी न्यू वैक्सीन बन रही है, तो उसमें जो सेंसर होगा ना वो होगा लेवल सेंसर। वो ये देखेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो बैच में इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर जो आप एक हाँ चीज लगाओगे वो लगाओगे लेवल। कोई सवाल है? नहीं सर, कह रहा था कि इसमें फ्लो सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटलेट से फ्लो कितना सेंसर भी बन रहा इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल, बट उसकी डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ हो जाएगी। अब अगर लेवल सेंसर इस्तेमाल कर रहे हो तो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, मेजर अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, एड टू द बैच। नीचे देख लेते हैं, अ लाइटिंग डिस्प्ले हैज बीन सेट अप। तो अच्छा, a lighting display has been set up in one room of an art gallery, or a random sequence of different color LED light is under microprocessor. The display only switches on when visitor walks into the room. ये तो सिंपल ऑटोमेटिक लाइट ऑन एंड ऑफ वाली चीज है। कौन सा सेंसर लगेगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। शाबाश, इंफ्रारेड भी लग सकता है। और बोलो बेटा, कोई ऐड करना मोशन है? सेंसर। मोशन सेंसर लग सकता है, मूवमेंट ऑफ इंट्रूडर या कोई भी जो आ रहा है वो डिटेक्ट हो जाएगी। और यहाँ एक और सेंसर लग सकता है, दैट इज थर्मल वाला जो लाइट लाइट सेंसर। लाइट सेंसर। ठीक है ना? तो अगर आप इंफ्रारेड लगाओगे तो इंफ्रारेड का काम क्या होगा? डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ विजिटर, डिटेक्ट्स सर सर इसमें प्रेशर सेंसर लग सकता है? विजिटर, ये प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है ना। लाइटिंग डिस्प्ले हैज बीन दिस। हाँ, प्रेशर लगा सकते हो कि जो बॉडी वेट है उससे भी वो हो सकता है। ठीक है, तो हो सकते हैं 2-3 डिफरेंट सेंसर इस्तेमाल होते हैं। तो वैसे इसमें ये पूछ रहा है सेंसर कौन सा यूज होगा, तो लाइट सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और इंफ्रारेड और मोशन सेंसर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो वापस आते हैं, मौजूद है सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी इज, सर। ये तो हो गया था, डिटेक्शन ऑफ द व्हीकल्स वाली बात हो गई थी। आ ट्रेन यूजेस ऑटोमेटिक ट्विन डोर्स, तो इसमें क्या कर रहा है ये? अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना। ट्रेन यूजेस ऑटोमेटिक डोर्स, बोथ डोर्स ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स क्लोजेस। तो यहाँ डोर वोर की बात हो रही है। यहाँ पर अभी जो मैंने आप बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा सेंसर लगेगा? प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर लगेगा, जो डोर ओपन क्लोज के अंदर इस्तेमाल होता है। और इंफ्रारेड भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसी बॉडी डिटेक्ट करेगा तो वो ओपन क्लोज करेगा। तो ये सेंसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेशर सेंसर क्या करेगा? डिटेक्ट पैसेंजर, और इंफ्रारेड क्या करेगा? प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ पैसेंजर। सर और मोशन सेंसर नहीं आएगा? सेंसर, मोशन सेंसर भी यूज हो सकता है, ठीक है, डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज रहती है? डिस्क्राइब द स्टेप्स। कल ही इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सपर्ट सिस्टम का मैंने कल ही कराया था ना, एक सवाल किया था, याद है?
क्या करता है ये? डिस्क्राइब द स्टेप्स इन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में सबसे पहले क्या चीज गैदर होती है? इंफॉर्मेशन ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है रिलेटेड टू द सर्टेन फील्ड। तो इंफॉर्मेशन गैदर्स, इन द नॉलेज बेस, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन एक्सपर्ट। कहाँ कहाँ से होती है? बुक से हो सकती वेबसाइट, है ना? हाँ, वेबसाइट से हो सकती है, बुक से हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमने की थी। इंफॉर्मेशन के बाद फिर हम जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है उससे हम क्या पॉपुलेट करते हैं? नॉलेज बेस, तो पॉपुलेट करते हैं हम नॉलेज बेस। और वो किससे पॉपुलेट होती है? इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो पॉपुलेट होती है नॉलेज बेस, उस चीज की मदद से जो हम गैदर करते हैं। नॉलेज बेस के बाद तीसरी चीज क्या आ जाती है? जब नॉलेज बेस हो गई तो नॉलेज बेस कनेक्ट किससे होती है? इन्फेरेंस रूल से। रूल बेस से। रूल बेस है ना, मतलब रूल बेस से कनेक्ट होगी, तो रूल बेस नीड्स टू बी क्रिएटेड। और उसका काम क्या होता है? तो ये बनाती है सीरीज ऑफ इन्फेरेंस रूल। ठीक है, तो मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इन्फेरेंस रूल्स। ठीक है जी, तो बात जो हो रही थी दैट इज अबाउट द पार्ट, जो जो चीजें हमारे कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। हमारे क्लियरली ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रूल बेस नीड्स टू बी क्रिएटेड, दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इन्फेरेंस रूल्स। तो ताकि जो है इन्फेरेंस सीरीज ऑफ इन्फेरेंस रूल्स, so that conclusion can be drawn, so that conclusion can be drawn। और उसके बाद क्या हो सकता है? इन्फेरेंस इंजन तो हो गया, डिस्क्राइब की बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स ये आ गए। और क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। सर सेटिंग अप ए यूजर इंटरफेस। सेटिंग अप अ यूजर इंटरफेस, तो हमें इसमें सेटिंग करनी पड़ती है, सेटिंग अप अ यूजर इंटरफेस। और फिर हम एक्सप्लेनेशन सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं अबाउट दिस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने कल देखा था ना कि इट सिमुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर, सिमुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, एक बात आ जाती है। ठीक है, और जिसमें वो क्या क्या चीज कर सकती है, उसमें वो रीजनिंग कर सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है ये, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी देती है, एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, एआई के लिए कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं एंड डाटा, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड डाटा, ये भी हो रहा होता है इसके अंदर। और एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट। अच्छा, ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना, ये पास पेपर में आया है भाई, ये वाला। ठीक है, तो एबिलिटी टू लर्न, अडॉप्ट, ये सब चीजें कर रहा होता है, एंड रीजन, एक एआई ये सब चीजें कर रहा होता है। अच्छा, मशीन लर्निंग के बारे में क्या डेफिनेशन हो सकती है? सर सर इज एआई a branch of computer science? वेरी गुड, एआई इज अ ब्रांच ऑफ सीएस। आप लोगों के पास चेंजेस नहीं आ रही जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ?
नहीं सर वो आ रहे हैं, बट वो बस आपने वो नहीं लिखा था ना कि वो ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसलिए कंफर्म करा था। हाँ हाँ, हाँ मशीन लर्निंग पे आ रहे हैं ना, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ऊपर वाली चीज तो शो हो रही है। तो मशीन लर्निंग के अंदर पहला पॉइंट तो हो सकता है कि इट्स अ सबसेट ऑफ एआई, इज अ सबसेट ऑफ एआई। आगे बताओ भाई क्या लिखूं? It needs data to be trained on. ठीक है, इन विच एल्गोरिथम्स आर ट्रेन टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एल्गोरिथम्स आर ट्रेन, जिसमें एल्गोरिथम्स बनाते हैं वो ट्रेन होते हैं ताकि वो अपने पास एक्सपीरियंस से चीज़ों को याद रख सके। तो एल्गोरिथम्स आर ट्रेन टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी। और डिफरेंस तो कल ही हमने देखे थे, और क्या डिफरेंसेस याद हैं आप लोगों को? हाँ जी, डिफरेंसेस का बताइए। AI's knowledge is limited to what it's provided. ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा सर मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो अब जैसे एआई की अगर हम बात करें, ये बुक में लिखी हुई है पूरी पूरी, सब बुलेट लिख देता हूँ, जैसे कि रिप्रेजेंट द सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट्स सिमुलेटेड इंटेलिजेंस, सिमुलेट करता है जो भी इंटेलिजेंस होती है इन मशीन्स। और दूसरी चीज जो हो सकती है वो द एम इज टू बिल्ड मशीन्स विच आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। ठीक है ना? तो एम इज टू बिल्ड machines capable of thinking like human, capable of thinking like humans। ठीक है। On the other side we have the machine learning। तो मशीन लर्निंग के अंदर हमने क्या था कि द प्रैक्टिस, ये तो ऊपर हम लिख चुके हैं मशीन लर्निंग में, ये पॉइंट हम लिख चुके थे कि एल्गोरिथम्स आर ट्रेन टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। ये वाला पॉइंट इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो भी डाटा होता है वो एक्वायर होता है थ्रू डाटा एक्विजिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एम इज टू मेक मशीन that learn through data acquisition। बोर तो नहीं हुए भाई, सब सो तो नहीं रहे? जल्दी जल्दी बताओ, जाग कौन रहा है? जी सर। जाग रहे यस हो? सर। दो Yes, बच्चे, sir. तीन चार, बस चार बच्चे, Yes, 30 sir. students हैं। Yes, sir. बस 5 6 7 हो गए ये। आगे। यस Yes, सर। sir. अच्छा जी, तो ये हो गया ऑटोनोमस ट्रेन। ये सब चीजें तो ऑलरेडी आप देखो, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने कल भी आपसे कहा था। थोड़ा सा जो है ना, सिर्फ 1 घंटा लगा लेना क्लास के बाद, ठीक है? तो ये जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इजीली मार्किंग स्कीम से अवेलेबल हैं और रटने वाले क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोग कर देना। अराउंड 90% जो है इस चैप्टर के कंटेंट डिस्कस हो गए। क्या कहते हो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। Yes, sir. ठीक है। जी sir. मैं फिर भी 5 मिनट एक और आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ, देख लेते हैं अगर उसमें भी कोई नई चीज निकल आती है तो वो भी डिस्कस करते हैं। 2 मिनट दो मुझे, मैं जरा वो वाला डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं कि हम देखेंगे कि क्या मई जून और अक्टूबर नवंबर में कहीं ये कुछ क्वेश्चंस यूज हुए हैं। तो हम जरा सर्च कर लेते हैं यहाँ पे जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं। ऑटोमेटेड, तो ये वाला सवाल कल ही किसी ने ग्रुप पे पूछा था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस एन ऑटोमेटेड सिस्टम इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑटोमेटेड सिस्टम यूजेस फ्लो सेंसर। आइडेंटिफाई व्हाट अ फ्लो सेंसर मेजर। क्या करता है भाई फ्लो सेंसर? डेप्थ ऑफ लिक्विड। और इससे बेहतर क्या हो सकता है? द अमाउंट ऑफ किस लिक्विड। रेट पे फ्लो कर रहे हैं लिक्विड? हाँ दोबारा बोलो। किस रेट पे फ्लो कर रहे हैं लिक्विड? किसको स्लो कर रहा है?
फ्लो कर रहा है, फ्लो किस रेट पे फ्लो कर रहा है लिक्विड। हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये भी लिख सकते हैं हम। और इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या यही हो सकता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो, दोनों चीजें एक ही चीज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो एक ये आ गया। इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग ऑटोमेटेड सिस्टम। बहुत बार आ चुका है। क्या फायदा हो सकता है ऑटोमेटेड सिस्टम का? 24/7 काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, कंसिस्टेंसी है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? थाउजेंड सर डी स्किलिंग। अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। एक और भी हमने देखा था कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं, जैसे हम विंड स्क्रीन वाली बात कर रहे थे ना, फिटिंग विंड नॉन स्टैंडर्ड टास्क नहीं कर सकते, जैसे Non standard आइडेंटिफाई task। नहीं कर सकता कि विंड स्क्रीन अगर टूटी हुई है नहीं। हाँ, तो नॉन स्टैंडर्ड टास्क की अगर हम बात करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड टास्क सच एज फिटिंग। अब आपको ना ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिटिंग विंड स्क्रीन ऑफ अ कार। ठीक है, तो वहाँ उसकी नीड हो सकती है, ये वाली बात आ जाएगी। सर आप बी का पार्ट बताएंगे? बी वाला वन एडवांटेज, जी सर। एक्सप्लेन सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या था? कैन वर्क 24/7। अभी तो हम बार बार सर ये कह बस रहे थे। अगर ये लिखेंगे वर्क 24/7 तो मार्क मिल जाएगा। हाँ हाँ, इट कैन वर्क 24/7 हो जाएगा। और क्या हो ओके। सकता है? ये सर हैजर्डस, टायर्ड नहीं होएगा आप? टायर हैजर्डस वर्क कर सकता है जो ह्यूमन के लिए हैजर्डस। मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। यस। ठीक है, और अभी बता रहे थे कौन सा बताया था? हैजर्डस हाँ, कैन वर्क इन हैजर्डस एनवायरनमेंट विच हाँ, मतलब उसको पूरा लिखना पड़ेगा, कैन वर्क इन अ सिचुएशन विच इज हैजर्डस फॉर ह्यूमंस। विच कुड बी hazardous for human। यस ठीक है बच्चों, ये हो गया। सर, ये आप 12 करवा देंगे एक दफा, मुझे याद नहीं आ रहा कि फीचर्स क्या थे। वेल, डिजिटल करेंसी यस। थोड़ा सबर करो, 6 के बाद जब आऊंगा तो करवा दूंगा ना, अभी बीच में मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। ये करा दूंगा, मसला नहीं है। डिजिटल करेंसी के दो फीचर, चलो तुमने पूछ लिया, बता देता हूँ। सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज हो सकती है, सेंट्रलाइज हो सकती है, ये हो जाएगा। प्रोसेस दैट यूजेस लेजर ब्लॉकचेन हो जाएगा। ओके, सही है भाई? ये एक फीचर्स के अंदर ही सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आ जाएगा, दो हाँ फीचर्स के हाँ, अंदर। क्यों? डिजिटल करेंसी की अगर बात करो तो हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन जो यूज करते हैं वो डिजिटल करेंसी नहीं है? यस। और अगर उसको ब्लॉकचेन पे ले जाओ, क्रिप्टो पे ले जाओ, तो वो हो जाएगी डिसेंट्रलाइज। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो वो तो सेंट्रलाइज है ना। सही है। उसमें सर, ये पेपर कौन से ईयर का? 2000 अक्टूबर नवंबर 2023 का 1-2। सर सर चलो बच्चों, यू कैन टेक अ टाइम फॉर दिस, 2 मिनट्स। अक्टूबर नवंबर 2023 का 1-3। अक्टूबर नवंबर 2023 का 1-3। ठीक है, सामने है आपके। और आपने इसका आंसर बताना है। 1 मिनट ले लो, 1 मिनट बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करें बच्चों, इफ यू आर रेडी। नो सर। अच्छा, देख रहे हो? देखो, बाकी टॉपिक्स भी इसी तरह कराएंगे। इसका क्या जवाब होगा भाई? इरादा तो मेरा ऐसा ही कि सारा कराऊं आपको, ताकि आपकी कोई चीज रह ना जाए।
क्योंकि फिर एक एक चीज मैं चाह रहा हूँ करवा दूं आपको कि पीछे कोई चीज ना छूटे। लेकिन ये कि खुद आप लोगों ने भी जरूर मेहनत करनी है। आपकी मेहनत जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 घंटे तो ये क्लास आपकी चल रही है, 1 घंटा आप मजीद और दे दोगे तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। पेपर अभी आपके स्टार्ट हुए नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाओगे तो एंड में आपको परेशानी नहीं होगी, होपफुली इंशाल्लाह। यार रमजान में मैंने आपको एक 15 मार्कर भेजा था, आपने कहा था कि जब ईद की बाद क्लासेस शुरू होंगी तो मुझे बता देना वो वाला क्वेश्चन। 15 मार्क का क्वेश्चन था। हाँ तो पेपर 1 कंप्लीट कराता हूँ पहले, 3-4 दिन पहले इसको तो निपटाऊं, फिर उसके बाद उसकी तरफ आ जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। देखो 15 मार्क वाला क्वेश्चन तो मैं एंड तक भी तुम्हें कराऊंगा ना, जो आखिरी के 3-4 दिन रह जाएंगे तो तुम वहां पे भी तुम्हारे लिए वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग रहेगा। मुझे तो 60 मार्क्स पहले वाले वो भी पक्के करवाने हैं तुम्हें, ताकि वो 16 मार्क्स पक्के होना। कल देख रहा था मैं तो जो अक्टूबर नवंबर का थ्रेशोल्ड था ना वो था 41 P1 का था और 45 P2 का था। अगर आप लोगों ने देखा हो, ये मिला के 85 बनता है। यानी 75 में से 41 लाने पे ए ग्रेड बन रहा था, और 75 में से 44 लाने पे ए ग्रेड बन रहा था पेपर 2 में। पेपर 2 का थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा था। अब आप जरा सोचो कि आपके पास उसको हटा के, सिनारियो को हटा के 60 नंबर है, आपको तकरीबन तकरीबन 30-30 नंबर का लेवरेज मिल रहा है। यानी जिसका भी अगर अक्टूबर नवंबर के अंदर इस तरह का पेपर हुआ, मई जून में डेफिनेटली वो बढ़ेगा। मई जून में आप समझ लो कि 52 से 55 जाएगा। जो मैं मुझे लगता है कि तकरीबन 45 से 50 P2 का होगा, और 52 से लेकर 55 तक जो है ना वो P1 का होगा। तो आपके पास फिर भी 20 नंबर बचते हैं। बट मैं ये सर नहीं कहूँगा टोटल कि ए आप, स्टार का क्या होएगा? ए स्टार का था 110। 85 के ऊपर जो था, 85 के ऊपर बन रहा था ए, जाहिर है 44 और 41 85 बनता है। और 110 के ऊपर 75 हाँ 110 के ऊपर ए स्टार था 150 में से। और सर मई जून में कितना लगता है आपको होएगा? किसमें? मई जून में अभी बताया ना मैंने तुम्हें भी, P2 का अभी अभी 45 से 50। अभी तो बता रहा हूँ। अभी जो तुम्हारा मई जून होगा ना 2024 का, उसमें 45 से लेकर 50 तक का तुम्हारा P2 होगा, और 50 से लेकर 55 तक का P1 होगा। ये है। नहीं सर, वो चलो टोटल ए स्टार का क्या लगता है आपको होएगा मई जून में? टोटल, ए स्टार का क्या होएगा मई जून में? हाँ बे स्टार के ऊपर आ जाओ तो 45-55 तुम्हारा तकरीबन बन जाएगा, मिला के 50-50-100। ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से जो बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, वो बनेगा 110 से लेकर 115-118 तक। इससे ऊपर तो दायरे जाना मुश्किल होता है। सर ये तो आप काफी हाई बता रहे हैं। तो इतना तो होगा ना, मई जून का पेपर दे रहा हूँ। इतना हल्का पेपर थोड़ी आएगा, अक्टूबर नवंबर थोड़ा हल्का था। चलें जी, थोड़ा जल्दी से वापस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करना है हमने, जल्दी से बताओ। एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ डैश, क्या होता है इसमें? नॉलेज बेस। नॉलेज बेस। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट, एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ नॉलेज बेस। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस यस सर। ठीक है। तो एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ नॉलेज बेस, एक तो ये आ गया। दैट कंटेन अ लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स, द डैश अप्लाइज, कौन अप्लाई होता है भाई इस पे? इन्फेरेंस इंजन। इन्फ्लुएंस इंजन। द सर रूल्स इन्फेरेंस, बेस। नहीं यहाँ तो रूल्स इन्फेरेंस बेस इंजन नहीं होगा ना। होगा? नहीं, द इन्फेरेंस इंजन अप्लाइज द डैश, अब रूल बेस होगा। हाँ अप्लाइज द रूल बेस, रूल बेस। और उसके बाद टू द डैश, रूल बेस किस पे अप्लाई होती है भाई? रूल बेस नॉलेज बेस। अप्लाई होती है, नॉलेज बेस के ऊपर होती है। और आखिर के अंदर टू रीच द डायग्नोसिस द यूजर प्रोवाइड्स डाटा टू द सिस्टम यूजिंग डैश इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक सवाल साथ साथ हो गया हमारे। द एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। तो इसका क्या हो सकता है भाई? सर लर्न फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है। तो अगर हम जैसे लिखे मशीन लर्निंग के बारे में, पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक पॉइंट क्या आ सकता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बात हम कर सकते हैं, सो इट कैन अडॉप्ट द चेंज, हमने पढ़ा था ना, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अडॉप्ट। ठीक है। तो हैविंग एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट
having ability to learn and adopt the change, तो ये हो सकता है, और it is trained to learn from the past experiences. It is trained to learn from the past experiences. ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है आखिरी बताओ कोई? 4 पॉइंट्स क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैविंग एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट चेंजेस। इट इज ट्रेन्ड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। क्या होगा? सर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन यहाँ सूटेबल हो सकता है कि मैं जैसे कि मैंने बात कर दी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। कहना क्या चाह रहे हो, क्या लगाऊंगा? रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब अगर हम उसको मीन्स कोई ऐसा काम करे जो सही ना हो और हमने उसको उसको टोक दिया कि बैड रोबोट ऐसे करके, तो वो उसको फिर दोबारा नहीं करेगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो, चलो देखते हैं भी, रुको। विवेक बताओ। सर इफ आई डोंट नो कि पॉइंट होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका एक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है। प्री एग्जिस्टिंग? जी सर। ये हम सर बात, पूरी इंटरनेट जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लो, हाँ हाँ इसमें खुद इंडिविजुअली नहीं हाँ, डालनी तो होती बात है देख सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन। अभी हमने की थी कि जो डाटा एक्विजिशन होती है ना इसकी, यही बात थी ना। एक्वायर द डाटा फ्रॉम, जी सर। एक्वायर डाटा फ्रॉम द इंटरनेट, डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो ये करता है ना कि डाटा एक्विजिशन फ्रॉम द इंटरनेट, ये पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, और एक बात एक और आ गई मेरे ध्यान में, दैट इज एनालाइजिस द पैटर्न। ये भी था इसके अंदर, एनालिसिस द पैटर्न। जो पैटर्न होते हैं फिर उसको एनालाइज भी करता है। एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न, द पैटर्न। ठीक है, ये चीज आई थिंक दैट इज मोर इनफ, काफी है। आगे देखते हैं क्या है। ये तो हो गया, ठीक है। और एक्सपर्ट सर आप इस सवाल का वो मार्क स्कीम दिखा देंगे? बी है ना? जी सर। इसका सर और वो देखना है वो क्या क्या वो 10, पॉइंट्स हैं। 10 का बी, 10 का ए, 10 का बी। इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन अडॉप्ट द चेंज। ये दो बातें की हुई हैं। इट कैन एडिट इट्स ओन डाटा, इट कैन बी ट्रेन, जिसको मैंने लिखवाया था कि इट इज लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। इट कैन बी सुपरवाइज अनसुपरवाइज, मीनिंग इट कैन लर्न विद और विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सर मैं यही पॉइंट बोल रहा था। हाँ, तो उसको इस तरह से लिख लोगे कि इट कैन लर्न विदाउट, विद और विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर उसके अलावा जो है एनालिसिस पैटर्न एंड स्टोर सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल रिजल्ट्स। और बाकी ये था कि सुपरवाइज मींस द यूजर टेल्स द सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट। ये है भाई, हो गया तुम्हारा सवाल सर पूरा? यहाँ डेटा एक्विजिशन का नहीं लिखा हुआ है। मसला नहीं है, लाजिम नहीं है ना लिखा हो, अगर लिखा हो भी और सही तो कर रहा है ना वो, ओके सर। कैपेबिलिटी तो है ना उसकी। सही, आगे बढ़ जाऊं? जी सर। एक्सपर्ट सिस्टम, अगला सवाल आया था ना इसका, एक्सपर्ट सिस्टम वाला। वन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई, ये तो अभी हमने 4 लिख दी वहां पर ना, काफी है। और एक्सपर्ट सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, ये वाला सवाल अभी हम उसमें कर चुके हैं, वर्कबुक के अंदर जो पूरी सारी चीजें बताई थी कि कौन कौन क्रिएट होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, ये भी वही वर्कबुक वाला सवाल है, इंफॉर्मेशन गैदर होना, फिर उसका जो है ना वो सारी चीजें बनाना। तो इसके अंदर ये एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे, तो इस वाले पेपर में ये सारी चीजें आ गई हैं। मेजुन वाले में अगर आगे हम लिखते हैं ऑटोमेटेड, तो इसमें आई गेस मुझे याद पड़ता है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ही थे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, सेंसर की बात हो रही है, तो ये तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला ही उसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। गिव टू एडवांटेज डिसएडवांटेज, वही सारी बातें अब रिपीटेड आएंगी क्योंकि हम तकरीबन सारी चीजें कर चुके हैं।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये सब चीजें पूछ रहा है वो। तो ऑटोमेटेड की तो कोई चीज नहीं है। रोबोट्स से रिलेटेड देख लेते हैं। रोबोट्स फैक्ट्री में होते हैं। अच्छा ये बता दो, ये तो आसान सा है, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने रोबोट्स की? 3. 3 थी। कौन कौन सी? Have a degree of movement, programmable, ability to sense the ठीक है, surroundings. तो हमने लिखा था। अब इसको ना थोड़ा इस तरह से लिखोगे, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट। तो एक चीज क्या थी? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, ऐसा ही था। Yes. एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। दूसरा क्या था? सर प्रोग्रामेबल। हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट। और तीसरी की क्या चीज थी? सर प्रोग्रामेबल है। यस, दे शुड बी प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट होगा और प्रोग्रामेबल होगा। देखो ये तो मैं बुलेट्स लिख रहा हूँ, उसमें तुम्हें मैंने कल मार्क करवाया था कि तुम्हें उसको फिर आगे डिस्क्राइब थोड़ा करना होगा। ठीक है ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसका कंट्रोलर होता है और वह कैसा माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है। जी विवेक। सर हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि वो जो 3 लॉ होते हैं रोबोटिक्स, कि वो कभी इंसान को नहीं हर्ट करेगा नहीं और नहीं, वो सारा? यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ये तो अंडर द हेडिंग बुक में यही तो था, कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉ की बात थोड़ी करनी। वो नहीं लिखोगे, वो लिखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है। और एडवांटेज ऑफ रोबोट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टू बिल्ड कार इन द फैक्ट्री, क्या फायदा था एडवांटेज? Can work 24/7. 24/7। Less chances of error. हाँ, Can work Less efficiently. chances of error. लेस चांसेस ऑफ एरर। Can work in a hazardous environment. और सर लेस मनी स्पेंट ऑन लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटर प्रोडक्टिविटी, मोर कंसिस्टेंट। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और भी बता रहे थे, हाँ बताओ कौन बता रहा था? Can work efficiently. रिपीट करो दोबारा, क्या कह रहे हो? Can work efficiently. कैन वर्क एफिशिएंटली। ठीक है ना। कॉस्ट कम कर देती है क्योंकि ह्यूमंस की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। हाँ, तो ये भी लिख सकते हो। तो ये इसके लिए हो गया। आई थिंक दैट इज मोर इनफ। ये रोबोटिक्स से तो नहीं है ये। एक सेकेंड, आ गया आ गया। इसके बाद ही है, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय रोबोटिक्स। तो अभी तो हमने पढ़ा था रोबोटिक्स क्या होता है। अ ब्रांच ऑफ branch कंप्यूटर दैट, A branch, yes, that brings together design, construction, and operation of robots. है ना, ये कर चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दैट ब्रिंग द डिजाइन कंस्ट्रक्शन, डिजाइन कंस्ट्रक्शन और तीसरी चीज क्या थी? ऑपरेशन और रोबोट्स। ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई दोबारा घूम फिर के आ रहा है। द रोबोट नीड्स टू फाइंड आउट थ्रू द डिफरेंट पजल। ये एक बार देख लेना ये वाला सवाल। ठीक है, फरवरी मार्च 2023 1-2, जरा इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। फरवरी 2023 और क्वेश्चन नंबर सर 6। हाँ जी, आप क्वेश्चन दिखाने स्क्रीनशॉट ले लें जो आप कह रहे थे। ये वाला ना, इसी Yes. का बता रहा हूँ। 2023 का फरवरी मार्च 2023 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका पार्ट डी का 1 और 2 है। कैरेक्टरिस्टिक्स की तो हमने बात कर ली है। एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम विल यूज एआई, इसका थोड़ा सा तुमने देखना होगा। ठीक। चलो ये मैं तुम्हें करवा देता हूँ। द रोबोट नीड्स टू फाइंड अ वे थ्रू डिफरेंट पजल, each puzzle has a series of paths that a robot needs to follow to find its way to end the puzzle. The puzzle contains dead ends and obstacles, so the robot needs to decide which way to go. तो इस वाले सिनारियो के अंदर हाउ द प्रोग्राम विल यूज एआई, इस सिनारियो में प्रोग्राम एआई कैसे यूज करेगा, इसको जरा जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं। आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 था ना, या 5 था? नहीं 6 ही है। ये वाली बात हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ये तो उसका सवाल का जवाब था जिसमें वो पूछ रहा था कि रोबोट्स की डेफिनेशन थी डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट। और इसका कौन सा वाला था भाई? 6D का यही होगा। पार्ट 2। हाँ, अब उसमें देखो क्या क्या कह रहा है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हम देख लेते हैं तो उसमें कैसे इस्तेमाल होगा पजल
को सॉल्व करने में, यानी रोबोट। तो वो कह रहा है कि यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, ये इसका जवाब लिख लो। यूजेस द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, और कलेक्ट्स डाटा अबाउट वेयर इट हैज बीन, जहां पर है वहां से डाटा कलेक्ट करेगा। इट कलेक्ट्स डाटा अबाउट द ऑब्स्टिकल, उसके रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगा। और स्टोर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल एक्शंस, ये देखेगा। और आइडेंटिफाई द स्टोर एंड पैटर्न्स, ये अभी हमने पीछे पढ़ा है। एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न, वही चीज है। टू मेक श्योर इट डज नॉट रिपीट द सेम इनकरेक्ट रूट, और सो इट नोज हाउ टू रिएक्ट टू द ऑब्स्टिकल नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट करेगा। अगर उसको एक जगह ऑब्स्टिकल मिलेगा, नेक्स्ट टाइम वो उस जगह से नहीं जाएगा, ठीक है। सो दैट इट नोज व्हाट इज मोस्टली लाइक टू वर्क नेक्स्ट टाइम। क्या ये बात बच्चों समझ में आती है? जाग रहे हैं सब? जी सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। तो ये तो हो गया रोबोट से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से रिपीट हो रही है, सवाल एक्सप्लेन वाला था वो भी हो गया। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कैरेक्टर्स वाला सवाल लिखना कैसे शुरू करें। कौन सा वाला? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई लिखना कैसे शुरू करें? अभी मैंने पीछे जी लिखा सर। था तो उसके 3 या 4 पॉइंट बुलेट पॉइंट्स थे। नहीं सर, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं कि लाइक इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है। एआई, ठीक है, आगे बोलो। और सर इट उसमें बताना होगा ना, सिमुलेट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर, अगर तुम उस तरह लिखना चाह जी रहे हो। सर, इसे सिमुलेट्स। और सर फिर वो ऑब्वियसली इट रिकॉग्नाइजेस द पास्ट पैटर्न। एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वह हाँ। पैटर्न रिकग्नाइज करता है। तो सर फिर ये आंसर हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक थोड़ी सी देखो डिफरेंट सी चीज आ गई है कि फर्नीचर के अंदर टू एडवांटेज ऑफ कंपनी एम्प्लॉय यूजिंग रोबोट्स। यार ये वही चीज है, रिपीटेड है। फर्नीचर के अंदर भी वही फायदा वही नुकसान होंगे जो आगे पीछे हमारे रोबोट्स में आ रहे होंगे। प्रिसाइज बना देगा, 24/7 काम कर लेगा। तो रोबोट वाला पार्ट तो तकरीबन यहाँ पर मजीद कोई नहीं है। रोबोट के बाद एक्सपर्ट सिस्टम था, और एक्सपर्ट सिस्टम में आने वाला सवाल क्या है? 3 कंपोनेंट बता दो जल्दी से, यहाँ पे कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। कौन कौन से होते हैं? 5 हैं। नॉलेज बेस, इंफ्रेंस रूल इंजन, बेस, रूल्स इनफरेंस बेस, इंजन। नॉलेज बेस, यूजर इंटरफेस। नॉलेज बेस, रूल बेस, यूजर इंटरफेस, ये हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है ना कि द रोल ऑफ द इन्फेरेंस इंजन, तो समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था कि इन्फेरेंस इंजन क्या करता है, कि इन्फेरेंस इंजन जो भी नॉलेज बेस से जब डाटा उठ के रूल बेस के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको जो कंक्लूड करता है वो आपका इन्फेरेंस इंजन करता है। ये एक अच्छा सवाल है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्फेरेंस इंजन इन एक्सपर्ट सिस्टम। अब इसका आप जवाब देख लो कि इन्फेरेंस इंजन किस तरह से काम करता है एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9, ये रहा। तो ये देखो, ये चीज लिखना कि इन्फेरेंस इंजन मेक्स अ डिसीजन। अब इसको जब आप लिखने जाओगे ना, तो अब आप इस तरह से लिखोगे कि इट मेक्स डिसीजन बाय अप्लाइंग, ये अपने पास नोट डाउन कर लो, बाय अप्लाइंग रूल्स एंड लॉजिक टू द फैक्ट्स। सही किस उसका आंसर है क्वेश्चन है? हाँ, ये रोल ऑफ इनफेरेंस इंजन है। ये इन्फेरेंस इंजन के बारे में पूछ रहे थे ना कि हाउ इन्फेरेंस इंजन वर्क्स। यस। ये रहा सवाल, देख लो, रोल ऑफ इन्फेरेंस इंजन, सही है। तो रोल ऑफ इन्फेरेंस इंजन एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि ये आपके पास जो भी डाटा आ रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो आप कह सकते हो कि इसका रोल ये है कि इट मेक डिसीजन। इन्फेरेंस इंजन डिसीजन लेता है, कैसे लेता है? बाय अप्लाइंग रूल्स, रूल अप्लाई करते हैं, लॉजिक टू द फैक्ट, जो भी उसको दिए जाते हैं, ठीक है। टू द फैक्ट लिख लोगे तो काफी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिजल्ट। अब कोई अगर ये पूछे ना सर इसको हमें पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये इस तरह से लिखते हो आप कि अब ये 3 मार्क हो गए। इट मेक्स डिसीजन बाय अप्लाइंग रूल्स एंड लॉजिक टू द फैक्ट, फैक्ट्स होगा बल्कि, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिजल्ट। क्या ये बात बच्चों सबको समझ में आती है?
ठीक है, बस एक ही को समझ में आई? रूल्स बेस्ड काम करता है क्या? Yes. क्या कह रहे हो? सर ये रूल्स बेस्ड काम करता है ना? रूल बेस से मुराद ये कि रूल बेस इसको निकाल के लाके देता है। रूल बेस का तो ये काम है ना कि डेटाबेस से कितना, नॉलेज बेस से कितना डाटा उठाना है। रूल बेस का काम ये है। आगे बढ़ जाऊं? कॉपी हो गया सर ये? 2 सेकंड दे दें, 2 सेकंड दे दें। लिख रहे थे? जी सर। ये लो, नोट डाउन कर लो। It makes decision by applying the rules and logic to the facts in order to provide result. जी सर हो गया। हो गया? एक्सपर्ट सिस्टम ये आ गया। अच्छा, ये कोई नया सवाल है? टू अदर कंपोनेंट तो ये हो गया। डिस्क्राइब द, अब यहाँ देख लो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ रूल बेस। वहां पे इन्फेरेंस इंजन की बात की थी इसने, यहाँ पे बात कर रहा है रूल बेस। तो रूल बेस के बारे में हम क्या लिखेंगे बताओ? रूल बेस, यस विवेक? सर तो रूल्स बेस्ड डेटा पे वो रूल्स अप्लाई करता है और ऑब्वियसली पिक करता है कि कौन सी वाली इंफॉर्मेशन चाहिए और वो फिर वो आउटपुट करता है ना? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि रूल बेस क्या करता है। रूल बेस स्टोर द रूल्स फॉर द सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हो कि स्टोर द रूल फॉर द सिस्टम। तो स्टोर्स द रूल्स फॉर द सिस्टम, so that inference engine is used to link the facts in the knowledge base। इसको इस तरह से आप बना सकते हो कि स्टोर द रूल फॉर द सिस्टम, जो रूल्स होते हैं उसको स्टोर करता है ताकि इन्फेरेंस इंजन उसी को यूज करते हुए लिंक करे उन फैक्ट्स के साथ जो नॉलेज बेस में मौजूद है। तो ये आपका रूल बेस काम कर रहा है। रूल बेस क्या कर रहा है? रूल बेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है रूल्स को। बेस तो इस्तेमाल होता है स्टोरिंग के लिए ना, डेटाबेस डाटा को स्टोर कर रहा है, रूल बेस रूल्स को स्टोर कर रहा है। तो स्टोर द रूल्स फॉर द सिस्टम सो दैट द इन्फेरेंस इंजन इज यूज्ड टू लिंक द फैक्ट्स। तो फिर इन्फेरेंस इंजन का काम कंक्लूजन निकालना होता है। तो इन्फेरेंस इंजन इसलिए इस्तेमाल होगा ताकि वो लिंक कर सके फैक्ट्स को जो नॉलेज बेस में मौजूद हो। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? है। सर वो लिंकिंग पार्ट में कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें वो कैसे जो आपने लिंकिंग कह रहे हैं वो रूल बेस और वो नॉलेज देखो, बेस की। देखो लिंक का मतलब ये होता है, जो तुमने डायग्राम अगर देखी हो तो ये आ गई ना, इसी में डायग्राम अगर है तो अगर उस डायग्राम को गौर से देखो तो इन्फेरेंस इंजन और रूल बेस आपस में लिंक कर रहे होते हैं नॉलेज बेस से निकलते हुए। यानी वो ये कह रहा है कि ये चीज कोऑर्डिनेट कर रही होती है आपस में। 6, एक्सपर्ट सिस्टम ये देख रहे हो क्या कर रहा है ये इन्फेरेंस इंजन रूल बेस के साथ लिंक कर रहा है। जी सर। कर्सर नजर आ रहा है? तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि रूल बेस में क्या है, रूल बेस के अंदर आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, जी सर तो लेकिन अगर वो देखो समझ नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई होते हैं रूल। हाँ, सर वो लिंकिंग वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं? देखो ऐसे अप्लाई होते हैं कि नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस में डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉलेज बेस से वो डाटा आता है। अब जब वो डाटा आ जाता है तो वो डाटा जाता है रूल बेस पे। यानी ये समझ लो कि नॉलेज बेस से जब डाटा आ गया तो रूल बेस, क्योंकि इन्फेरेंस इंजन से कनेक्ट हो रहा है, तो रूल बेस उस डाटा को, जितना भी डाटा आ रहा है उसमें से ये देखेगा कि यानी इन्फेरेंस इंजन का काम प्रोसेसिंग है। इन्फेरेंस इंजन प्रोसेसिंग करेगा और रूल बेस ये देखेगा कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा उस वाले सवाल के लिए रिक्वायर्ड है जो पूछा गया है। तो तो सर नॉलेज रूल्स बेस फालतू इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट कर देगा ना? कौन करेगा? रूल्स बेस फालतू इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट कर देगा ना? रूल बेस की बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट होगी, रूल बेस नहीं करेगा, करेगा इन्फेरेंस इंजन उसको।
तो सर ये बेसिकली कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, लाइक रूल्स, Yes. गाइडेंस देगा कि इन्फ्रेंस इंजन को कैसे करना है। हाँ, ये इट चेक्स फॉर द ओके सर्टेन कंडीशन। ये सर्टेन कंडीशन को चेक करेगा। वो सर्टेन कंडीशन अगर मीट कर रही होगी तो फिर उसी बेसिस के ऊपर आपके पास इन्फेरेंस इंजन जो है कंक्लूड करेगा। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। और एक्सपर्ट सिस्टम भी इसमें आ गया। ये 2023 का पेपर है। ये तो एक्सपर्ट सिस्टम का क्वेश्चन रिपीट हो गया। आखिर में हमारे पास क्या चीज बची थी? मशीन लर्निंग। ये देख लेते हैं, मशीन लर्निंग। ये एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, बस मशीन लर्निंग नहीं आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने बात कर ली, ये भी हो गई। तो बच्चों यहाँ तक ना ये पूरा होपफुली, अभी भी बोलूंगा हो सकता है कहीं कोई चीज प्लस माइनस रह गई हो, बट स्टिल 90% तक हम कवर अप कर चुके हैं चैप्टर 6 को पूरा। क्या कहते हैं आप लोग, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। सर